Good morning, students. Myself, Dr. U.K. Yadav, PGT Bio at JNU Biroli, Samastipur, Bihar. In continuation with the last video, in the same chapter, that is why do we fall in from NCERT chapter number 13. Now, today it is the term for causes of disease. What are the factors which lead to disease? Suppose we are healthy, but sometimes we are trapped, we are becoming sick. So why we are becoming sick? What are the reasons behind it? So it is not a single factor, it is not a single reason, rather there are so many factors. So today I would like to describe what are the causes, what are the main causes and what are the subsidiary causes. Sometimes there may be some reason that is the vital and some of the other factors they contribute, and as a result it leads to sickness. So let us talk today regarding causes of diseases. So let us talk regarding what are the factors, what are the reasons that leads to disease. Means what causes diseases. डिजीज होने के क्या कारण है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ सभी बच्चे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई खास बच्चा बीमार हो जाता है. सभी बच्चे बीमार नहीं होते. अब कोई खास बच्चा क्यों बीमार होता है जबकि सभी बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक जैसा पानी पी रहे हैं, सभी का एनवायरनमेंट एक जैसा है, फिर भी इसके बावजूद आउट ऑफ 500 और 600 स्टूडेंट्स डेली 2 or 3 students they are getting sick and their sickness may be of various types. So what factors leads to creation of such deformities in that child? So I would like to discuss different levels of causes which are leading to creation of a disease. इमेजिन कीजिए कोई बच्चा बीमार पड़ता है, कोई भी बच्चा बीमार पड़ा तो हो सकता है कि बीमारी किसी पर्टिकुलर पैथोजन के कारण, पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के कारण, या फिर हो सकता है बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है बच्चे का हेल्थ पुअर हो सकता है जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई लैकिंग हो. सो लेट अस डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज. अब बच्चे बीमार हैं, लूज मोशन है, तो क्या होगा जो फर्स्ट कॉज है, इमीडिएट कॉज वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन विथ virus. That means this is the immediate cause. Virus is the immediate cause, or it may be termed as first level cause of disease. अब प्रश्न उठता है virus from where, कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आएंगे, either from contaminated food or water. अब प्रश्न उठता है कि यदि ये फूड और वाटर से आए तो why not all students are suffering from the diarrhea from loose motion. That means that particular child may have poor health. The health of the child is poor. Now why the health of child is poor? That may be due to their household. That may be due to lack of nutrients. It may happen that they are not getting sufficient food, or the reason behind it may be their poverty. So the next factor becomes the lack of nourishment, lack of nutrients, lack of balanced diet. That becomes second level cause of diseases. Now the question arises, why they are not getting the balanced diet, why they are not taking the healthy food. So the child is not getting the balanced diet due to poverty, due to household. And another factor may be there, that there may be genetic differences. Sometimes what happens, a particular person is prone, a particular person is susceptible to particular disease, even the condition is similar for all.
हर एक के लिए एक ही जैसी व्यवस्थाएं होंगी, फिर भी कुछ लोग ही बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग कुछ बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं कि जब भी एक्सपोजर होगा तो वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज देयर जेनेटिक डिफरेंसेस बिकॉज देयर आर वेरिएशंस इन इंडिविजुअल। इतनी बड़ी दुनिया में इतने पॉपुलेशन है, लेकिन कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन की बात छोड़ दें तो दुनिया में जितने भी लोग हैं दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक जैसे हो सकते हैं, दिखाई देंगे एक जैसे, बट जेनेटिकली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो वेरिएशन है उसके कारण हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब ये है कि कभी कोई एक फैक्टर, जैसे केवल और केवल यदि वायरस है तो डिजीज कॉज नहीं कर रही है, यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है हम बीमार नहीं होंगे, या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं हम लोग प्राय खाते हैं, और ऐसा नहीं कि हर एक बार जब भी हम लोग खाते हैं तो फ्रेश फूड ही होते हैं या वायरस फ्री होते हैं या कंटेमिनेशन नहीं होती है, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं बीमार पड़ते? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे? पैथोजन से। पैथोजन की एंट्री हो रही है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो ये इम्यून सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है हमारी, वो क्या होगा? दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दूसरा क्या है? द वाटर सप्लाई इज नॉट वेल। दैट मीन्स डिसइंफेक्टेंट का यूज होना चाहिए, या जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो कहीं ना कहीं क्या है? डिस्टर्ब है। जो पानी मिलना चाहिए कंटेमिनेशन फ्री वो नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स देयर आर पुअर public services, poverty in general and lack of public services. The availability of air, availability of water, these are the responsibilities of public services. So if the services are not up to mark, then the condition will not be hygienic and there may be chances that the person in that locality they are prone to sick, they are prone to disease. So overall, it is not a single factor that leads to creation of disease. Rather, all the other levels, all the other contributory factors, they lead to disease. They create atmosphere for being sick. So it is not a single factor. Rather, there are combination of factors. There are different factors, and all together it leads to creation of disease. Hence, in a nutshell, we can say that it is not a single factor, rather combination of factors. It is not only the immediate cause, rather immediate cause along with contributory causes both leads to creation of disease. अब बच्चे का जो हेल्थ पुअर है, हेल्थ कमजोर है, तो हो सकता है चाइल्डहुड में, बचपन में जो ग्रोइंग स्टेज था उस समय बच्चे का जो हेल्थ की फाउंडेशन है वो अच्छी नहीं हुई हो, और इसका कारण हो सकता है कि बच्चे को मदर्स मिल्क नहीं मिला हो, क्योंकि बचपन में चाइल्डहुड में अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होते छोटे बच्चों में। दैट इज बीइंग गिवन फ्रॉम देयर मदर। जो मदर्स मिल्क है दैट कंटेन्स immunoglobulin, that contains ready-made antibody, and that protects the child from external agent, from pathogen, from disease. So if the child is getting sufficient amount of mother's milk, he will be healthy, he will be fit. और यदि बच्चे को माँ का दूध किसी भी कारण से नहीं मिला है, बच्चे का जनरल हेल्थ पुअर होगा और बच्चे क्या होंगे? प्रोन टू इन्फेक्टियस डिजीजेस होंगे। ठीक है, तो क्या है? बच्चों को माँ का दूध मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। कई बार मार्केट से लोग दूध देते हैं बच्चों को, एडिशनल फूड देते हैं, लेकिन उस डब्बे पे लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। तो माताओं को चाहिए कि अपने शिशु को स्तनपान कराएं, क्योंकि न केवल ये फूड है बल्कि ये बच्चों के लिए मेडिसिन है, उनके लिए बूस्टर है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, उनके लिए सोल्जर है। और आप सभी सुने होंगे या कई बार प्रयोग भी किए होंगे, जब आपस में कोई भिड़ते हैं, मारपीट होती है, स्ट्रगल होता है, तो क्या होता है?
जो पहली बात होती है वो यही होता है कि कौन कितना माँ का दूध पिया है। तो वाकई जिसने माँ का दूध पिया है दैट मीन्स ही हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वन एंड ऑल।